آپ اباب نے متعدد دفعہ، بلکہ یوں سمجھیں کہ جتنے جوان ہیں انہوں نے سالوں سے، اور جتنے بوڑھے ہیں انہوں نے اپنی جوانیوں سے ایسی گفتگو سنی ہوگی، لازمی بات ہے، کیونکہ میں نے خود بھی سنی ہے کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان کی، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ ان اللہ قال، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، فرمایا کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرمایا کہ میرا بندہ جو میں نے اس پہ فرض کیا ہے وہ ادا کرتا رہتا ہے اور میرے قریب ہوتا جاتا ہے، میری بارگاہ کا قرب لیتا ہے، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے وہ نوافل ادا کرتا ہے، نوافل کے ذریعے اور میرے قریب آتا ہے، یہاں تک کہ میں خود اس سے محبت فرماتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، وہ فرمایا کہ جب میں پھر اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اب اس کا لفظی ترجمہ آپ نے سننا ہے، صرف یہ لفظی ترجمہ ہے، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، فرمایا میں اس کی سمع ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کے بصر ہو جاتا ہوں، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، فرمایا اگر مجھ سے وہ کچھ مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر میری بارگاہ میں میری پناہ کا طلبگار ہو تو میں اسے ضرور اپنی پناہ بھی دیتا ہوں، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، اور فرمایا کہ میں جب بندہ مومن کی روح قبض کرتا ہوں نا، اپنے خاص بندے کی، ولی کی، تو فرمایا کہ اور دنیا کے کسی کام میں مجھے پس و پیش نہیں ہوتی، لیکن بندہ مومن کی روح کے قبض کرنے میں فرمایا میں تردد کرتا ہوں کہ وہ موت کی سختی کو ناپسند کرتا ہے، اور فرمایا میں بھی بندہ مومن کی تکلیف کو ناپسند کرتا ہوں، لیکن میں اپنا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اسے پورا کر کے چھوڑتا ہوں، جو فیصلہ ہے وہ کر کے دیتا ہوں۔ اب یہ حدیث ہے مکمل، اس میں عموماً آپ سنیں گے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ولی کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک پورا پھر فینومینا اور پورا ایک نظریہ پیدا ہوتا ہے کہ گویا میں نے خود اس بات پہ جو ہے وہ باس مباحثہ کیا ہوا ہے، اور اپنے سے سینئر لوگوں سے باس مباحثہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو کہتے تھے کہ اللہ بندے میں اپنی صفت ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، وہ اللہ کہتا ہے میں اس کی سمع ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، تو اللہ اپنی جو صفت ہے سمع کی وہ اس میں اتار دیتا ہے، اور پھر ولی جو ہے جس طرح اللہ جہاں سے چاہے سنتا ہے، جب ظاہر ہے اللہ کی صفت اس میں آ جائے گی تو وہ اس کی بھی طاقت ویسے ہی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، یہ تقریریں ہیں جو آپ سنتے ہیں، اور وہ کہتے کہ اللہ فرماتا ہے بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی بصارت ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، تو اللہ اپنی صفت بصر جو ہے وہ سمیع بصیر ہے نا، وہ اپنی صفت بندے میں اتارتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب وہ صفت اس میں آئی تو جتنا جہاں تک دیکھنا، جو دیکھنا اس کے اختیار میں ہے وہ بندے کے اختیار میں بھی آ گیا، اسی طرح وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں تو جو وہ کر سکتا ہے، جو اس کے اقتدار و اختیار میں ہے، جو اس کی پاور میں ہے، تو جب بندے میں وہی صفت آ گئی تو پھر یہ بھی اسی درجے پہ آ گیا، یعنی جو کچھ چاہے وہ کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ تقریریں ہیں جو آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تقریریں ہیں جو سنتے ہیں، لیکن جو آدمی علم کلام پڑھا ہوا ہوگا
जिस आदमी ने इल्मुल अकीदा को जाना होगा, जो बंदा आले सुन्नत के एतकादात से वाकिफ होगा, वो हदीस के इन लफ्जों से ये नतीजा नहीं निकालेगा। ठीक है, क्यों? अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदी तो ये नहीं है कि उसकी जात या उसकी सिफात में कोई शरीक हो, उसकी जात या उसकी सिफात में कोई शरीक हो। दूसरी बात, इससे यह नहीं समझ लेना कि करामत नहीं होती। औलियाए इलाही की करामत होती है, उसका मैं आज उसका मौका नहीं है। करामत की बहस बाद में आएगी कि आज एक ये भी फितना है करामत का इनकार। बिलखुसूस ये जेलम में जो बैठा हुआ है ना 2 नंबर, इसने नौजवानों में ये चीज इंजेक्ट कर दी है मुतजिला की तरह के करामत के मुनकर बना दिया है कि कोई वली है, कोई उसकी करामत होती नहीं है। ये जिस तरह अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह की सिफत किसी बंदे में नहीं उतरती, इसी तरह अहले सुन्नत का यह भी अकीदा है कि औलिया अल्लाह की करामत होती है और बरहक है। लेकिन करामत एक और शय है, वो बाद में बताऊंगा मैं कि करामत जब बयान करूंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि करामत औलिया हक है, वो होती है अल्लाह की तरफ से। लेकिन करामत का यह मतलब नहीं कि किसी बंदे में अल्लाह की सिफत उतर आई है। ऐसा कहना सरीहन जो है वो अकीदा आले सुन्नत के खिलाफ है। देखिए ये अल्लाह अकबर, अल मक़सदुल ख़ामिस फिल इलाहियात फ़स्लुन फ़ित तंज़ीहात में है शरहुल मक़ासिद। क्या इबारत है? कमा क़ामतिद दलालतु अला इम्तिनाइल हुलूल वल इत्तिहाद अला ज़ात। फरमाया जिस तरह कभी दलाइल इस बात के मौजूद है कि अल्लाह की जात किसी की जात में दाखिल नहीं होती, अल्लाह का कोई अवतार नहीं होता। ये हिंदू जो बुत पूजा करते हैं, मुख्तलिफ बुतों को कहते हैं कि ये भगवान का अवतार है। अवतार का क्या मतलब कि भगवान, वो कहते हैं बड़ा जो रब है सबसे बड़ा, ठीक है, राम और ईश्वर, ये इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि वो इन बंदू की शक्ल में नमूदार होता है। तो अल्लाह की जात किसी शक्ल में, किसी सूरत में नहीं आती, किसी के अंदर दाखिल नहीं होती, किसी शक्ल को इख्तियार नहीं करती। इसी तरह फरमाया कि फकजा अल सिफात, इसी तरह अल्लाह की सिफतें भी किसी और शय में, किसी और जात में दाखिल नहीं होती, चाहे वो अल्लाह का कोई फरिश्ता हो, अल्लाह का जलीलुल कदर फरिश्ता, बारगाह मुकर्रब और बारगाह का खास फरिश्ता हो, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी हो और मुकर्रबीन फरिश्ते भी हो और हामिलीन अर्श भी क्यों ना हो, उनमें भी अल्लाह की सिफत आ सकती नहीं। क्यों? कि तौहीद की गैरत ये है। हमने तो सीखा है अपने उस्तादों से कि मनशा तौहीद क्या है कि शिरक ना हो। शिरक का क्या मतलब है कि अल्लाह को यह पसंद नहीं है कि किसी भी दर्जे में कोई उसकी शिरकत करे। यह है उसकी तौहीद की गैरत। ना कोई फरिश्ता उसकी सिफत ले सकता है। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम बावजूद है कि कायनात में उनका सबसे बुलंद मकाम है अल्लाह की बारगाह में, लेकिन अल्लाह की सिफत अंबिया में भी नहीं आती। नमूसे सहाबा की बात करते हो, नमूसे अहले बैत की बात करते हो, नमूसे रिसालत की बात करते हो, खत्मे नबूवत की बात करते हो, नमूसे इलाही की बात क्यों नहीं होती? नमूसे रब्बुल इज्जत कुछ नहीं है, नमूसे अल्लाह कुछ नहीं है, जबकि अल्लाह फरमाता है कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि मोमिन जो है उसकी सबसे ज्यादा शिद्दत से मोहब्बत अपने अल्लाह से होती है और उसी के नामूस पे जो है वो कंप्रोमाइज होता है। इस बात को समझना चाहिए। और मैंने बड़े बड़े अल्लामा देखे हैं जो इस भूल में पड़ गए, ठीक है, अकीदा तौहीद के नाम पे बड़े कॉन्फ्रेंसेस करने वाले लोग, और उसमें वो ये बातें करते पाए गए कि अल्लाह अपनी सिफत बंदे को दे रहा है, जबकि सरीहन अकीदे की किताबों में लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हो तो फिर हिंदू बुत पूजा करते हैं वो तो ठीक हो जाएंगे, कि वो कहेंगे कि ये इसमें तो अल्लाह की आ गई सारी शक्तियां अल्लाह की, हम कर रहे हैं। ईसाई भी ठीक होंगे, वो कहेंगे ईसा देखो मुर्दे जिंदा कर रहे हैं, देखो ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो
परिंदा बनाते हैं, मट्टी से फूंक मारते हैं, वो उड़ने लग जाता है। देखो अल्लाह वाली शक्तियां इनमें आ गई। तो अल्लाह वाली शक्तियां जहां पे आ गई, अल्लाह की सिफात जहां पे आ गई, फिर आगे पीछे क्या बाकी रह जाएगा? फिर ईसाई भी ठीक हो जाएंगे। तो ये बातें समझने की है। अब ये हदीस इसकी ट्रांसलेशन करके इससे गलत नतीजा निकाल कर जो जुहला के हाथों में पकड़ाई गई, तो अब जिदा पीर बूटा है, जिदा पीर लकड़ी है, जिदा पीर कोई भी है, यानी जिसने बैत की हुई है ना किसी की, और उसका काम है गोटा लगाना, चर्स पीना, भंग पीना, और वो मर गया, तो उसकी कब्र पे बैठ के उसके नाम की माला जपी जा रही है। क्यों? कि वो कहेंगे कि ये अल्लाह का वली है और इसमें सारी वही शक्तियां हैं और ये हमारे सारे काम यही बनाता है। को गल दी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, कोई गल थोड़ा जा दिमाग नू उता चुकना है। ये जो अल्लाह की सिफतें अल्लाह के बंदू में दाखिल करने वाले ग्रुप है, इनमें से सबसे बड़ा ग्रुप है ईसाइयों का। यहां पे इन्होंने बयान फरमाया कि वो कौन कौन से ग्रोह हैं। उनमें से एक ईसाइयों का ग्रोह है, जिनका मैंने कल इशारा कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम में वो अल्लाह की जात को हुलूल मानते हैं कि अल्लाह की जात ईसा में दाखिल है। जिस तरह जिन मैंने कहा कल मिसाल दी कि वो क्या दलील देते हैं। और एक गाली शिया, फमिनहुम बादो गुलात शियाती अलकाइलून, फरमाया शियों में से गाली फिरका जो है शियों का, वो ये अकीदा रखता है, वो कहते हैं कि ला यमतनिउ ज़ुहूर रूहानी बिल जिस्मानी। वो कहते हैं रूहानी जो अशिया हैं उनका जिस्मानी शक्ल में जाहिर होना मुमकिन है। कैसे? कहते हैं कि जिब्रील फी सूरत दहियतिल कल्बी। शिया दलील बना रहे हैं, गाली शिया, आम शिया की बात नहीं करता। वो ये दलील देते हैं कि देखो जिब्रील दहिया कल्बी सहाबी की शक्ल में नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, और दहिया कल्बी रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े खूबसूरत सहाबी थे, उनके हुस्न सूरत की मिसाल दिया करते थे लोग। तो जिब्रील उनकी शक्ल में अक्सर रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते। तो वो कहते हैं कि देखो दलील है कि रूहानी एक शय जो है वो जिस्मानी शक्ल में आ सकती है। वकबाज़िल जिन्न अव शयातीन फी सूरतिल उनासी, और जिस तरह के बाद जिन या शयातीन जो है वो इंसानी शक्ल में आ जाते हैं। तो कहते हैं फला यबउद अन यज़हुरल्लाहु तआला फी सूरति बाज़िल कामिलीन। तो इस पे दलील पकड़ते हुए राफजी गाली जो है वो कहते हैं कि अल्लाह से भी ये बईद नहीं कि वो किसी कामिल शख्स की सूरत में जाहिर हो। वह औलन्नास बिज़ालिका अलीयुन व औलादुहु, वो कहते हैं कि फिर जब अल्लाह किसी शक्ल में जाहिर होना चाहे तो अली और औलाद अली से ज्यादा बरतर कौन हो सकता है? उन्हीं की शक्ल में आएगा वो। इसी बुनियाद पर शियों के अंदर ऐसे ग्रोह हैं जो हजरत अली को खुदा मानते हैं, जिस तरह फिरका नुसैरिया है शाम के अंदर। ये अभी जो आउट हुआ है ना बशारुल असद, जिसका तख्ता उलट हुआ है बशारुल असद, ये इसी फिरका नुसैरिया से था, जो हजरत अली को खुदा मानते हैं। खुदा किस तरह मानते हैं कि खुदा की सिफतें और खुदा की जात उसकी हजरत अली के अंदर आ गई, वो ये मानते हैं। क्या देखकर? मौला अली की करामात देखकर। बात समझ में आई है कि नहीं आई? हाँ जी। फिर इनमें से एक है वमिनहुम बादुल मुतसव्विफात, फिर इनमें से सूफिया के अंदर से कुछ ग्रोह, सूफिया के अंदर से कुछ ग्रोह निकले हैं, जिन्होंने कहा कि अन सालिका इज़ा अमाना फी सुलूक, कि सालिक जो है जब ये सुलूक के रास्ते पे चलता हुआ, तरीकत के रास्ते पे चलता हुआ बुलंद मकाम पे पहुंचता है, वखासतन लिजातिल उसूल फरुब्बमा युहिल्लुल्लाहु फीहि तआला अम्मा यकुलु ज़ालिमुन उलुबन कबीरा। अल्लामा तफ्तानी फरमाते हैं कि वो कहते हैं कि फिर क्या होता है कि जब वो बंदा बुलंद तरीन दर्जे पे पहुंचता है, अल्लाह के साथ वो मिल जाता है, अल्लाह उसके अंदर दाखिल हो जाता है, अल्लाह उसके अंदर आता है। फिर क्या होता है? वकन नारि फिल हजर, वो कहते हैं जिस तरह पत्थर को आग में रखो, आग जलाते रहो जलाते रहो जलाते रहो, पत्थर का रंग आग वाला हो जाता है। तो आग और पत्थर एक हो गए। कहते आग और पत्थर एक हो गई है, जिस तरह लोहा है उसको आग में रखो आप, और लोहा और आग एक हो गए। आग की सिफत लोहे के अंदर, आग का रंग लोहे के अंदर,
आप किसी पर जलाना है, लो किसी पर भी जलाना होगी। तो इसी तरह वो कहते हैं कि जब अल्लाह की सुलूक में, उसकी बारगाह में कोई सालिक जो है, कोई तरीकत का मुसाफिर, वो आला से आला दर्जे पे पहुंचता चला जाता है, तो वो उसकी आग में इस तरह जलता है कि फिर उसकी सिफतें इसके अंदर, वो उसी का रंग ले लेता है। और फिर क्या होता है, कहते हैं कि फिर ये होता है कि वैया सारू, मैं इबारत इसमें थोड़ी थोड़ी पढ़ रहा हूं कि ज्यादा वक्त ना लग जाए। वयज़हरु मिनल गराइब वल अजाइब मा ला युतसव्वरु मिनल बशर, फिर कहते हैं फिर उससे ऐसे अजीब और गरीब काम जाहिर होते हैं जो किसी बशर से नहीं हो सकते। ठीक है। और अल्लामा तफ्ताज़ानी फरमाते हैं फसादुर रअयैन गनियुन अनिल बयान, फरमाइए जो दोनों बयान हैं इनका फासिद होना ये हर साहिब अकल पे वाज़े है, किसी को इसके बयान की हाजत नहीं है। लेकिन यहां पे क्या है, इस मजमून की तकरीरें नहीं होती हमारे मिंबरों पे। हमारे खतीब पाकिस्तान और खतीब फुलान, खतीब डमकान जो है वो यही तो तकरीरें सुनाते हैं पैसे बटोरने के लिए, और क्या फैला रहे हैं, गुमराही। ठीक है, अल्लाह का हुलूल करवा रहे हैं, अल्लाह की इत्तेहाद करवा रहे हैं, अल्लाह की सिफतें बंदू में डाल रहे हैं और गुमराही फैला रहे हैं। और कहते क्या है, सुन्नी अहले सुन्नत का ये अकीदा है। तो मैंने जिस तरह इब्तिदान अर्ज किया कि ये जितने अक्सर जो हैं, जो आलिम है नहीं और आलिम बने हुए हैं, आजकल अक्सर ऐसे हैं, आलिम है नहीं और आलिम बन बैठे हैं, दाढ़ी रख ली है, इमामा बांध लिया है, जी सोर चंगी है, वो खतीब इस्लाम है, तो वो आके यही बातें बताते हैं। और ये 60 70 80 साल से इस तरह की तकरीरें कर करके हमारे लोगों के ज़हनों में ये चीजें इस तरह से भर दी हैं कि जब हकीकत सामने आती है तो वो कहते हैं कि मिलावट वाला दूध बेचता पे नवा बंदा आ गया, और जी में दूध दिया ही ना कोई, ते ओ मिलावट वाला बेचदा आई, एक दिहाड़े छुट्टी कर ली किसी काम तो उस अपने दूजे बेली ने आख्या तू जाके फलाने फलाने घर मेरा लगे दोते ओते दही, तो वो ईमानदार है उस खालिस दिता नाल, तो बच्चे उन्होंने खालिस उन्होंने मेदे ना बर्दाश्त कर सके, वो बीमार हो गए, उन्होंने वो खालिस देने वाले काबू कर लिया, उन्होंने आया तू 2 नंबर दूध दिता है। समझ आई है ना। तो साडे नाल मसला पेश आ जाता है, जिस टाइम खालिस खोल के सामने रखो कि अकीदा क्या है, तो फिर आप देने भई ये 2 नंबरी करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 2 नंबरियां तो सन महफूज फरमाए।